Hello children, welcome to Manarmada School. Today is your English class, so get ready with your books. In the last class, we have studied our chapter number 3, How the Kangaroo Got Her Pouch. Today, we are going to do exercise of this chapter, so take out page number 28. So first we are having multiple choice question in which you have to select the correct answers from the given options. First one is the wombat was. तो wombat कैसा था? Lame, deaf, blind. So wombat was blind, अंधा था. The kangaroo was. Kangaroo कैसा था? Tender hearted. Kangaroo let the wombat hold her. तो कंगारू ने वॉम्बेट को क्या कहा था? क्या पकड़ लो? टेल. द वॉम्बेट वॉज एक्चुअली अ ग्रेट गॉड बाय मी. नेक्स्ट वी आर हैविंग फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज द कंगारू वॉज डैश हर जॉय ऑन द बैंक ऑफ ब्रूक. सो आंसर इज ग्रूमिंग. जॉय वॉज asleep अंडर अ gum tree and aboriginal hunter silently stalking the wombat. Bimey gave kangaroo mother a pouch. Then we are having true and false. First one is the wombat was deaf. No, he was blind. So answer is false. The kangaroo became the wombat friend. क्या कंगारू वॉम्बेट का फ्रेंड बना? So true. The kangaroo saved his life. क्या कंगारू ने वॉम्बेट की जान बचाई? So true. God by me had taken the form of wombat. क्या by me God वॉम्बेट का रूप लेकर आए थे? So true. The god gifted her a pouch to keep her baby in. True. Next we are having question answers. So here I have written answers of your questions. So very first question is, why did the wombat feel worthless and useless? वॉम्बेट को वर्थलेस मतलब कि अपने आप में बेकार और ख़राब क्यों लगता था? Wombat was blind. Nobody wanted to around him. Nobody thinks about him. He thought he is no good anymore. They've abandoned him, all of them. तो wombat देख नहीं सकता था, उसके पास कोई नहीं रहना चाहता था, सब उससे दूर भागते थे, कोई उसे पसंद नहीं करता था. तो वॉम्बेट को लगता था कि वो अच्छा नहीं है, इसलिए वो अपने आप को वर्थलेस और यूजलेस बोलता था. देन वी आर हैविंग व्हाट डिड द कंगारू डू टू मेक द वॉम्बेट फील बेटर? व्हाई डिड द जॉय गो? तो कंगारू ने क्या किया जिससे वॉम्बेट को अच्छा लगा और बाद में जॉय कहाँ चला गया था? जॉय मीन्स कंगारू बेबी. तो Kangaroo led him over the juiciest grass and cleanest water. कंगारू ने वॉम्बेट को सबसे टेस्टी घास और सबसे साफ पानी ढूंढने में मदद करी और बाद में देखा कि जॉय तो कंगारू मदर के साथ था ही नहीं. जॉय वॉज asleep अंडर अ गम ट्री. जॉय गम ट्री के नीचे ही कहीं सो गया था. What did she see moving after wombat? What did she do to save him? तो कंगारू मदर ने वॉम्बेट के पीछे क्या घूमता हुआ देखा और उसे बचाने के लिए कंगारू मदर ने क्या किया? सो शी सॉ एन aboriginal hunter silently stalking the wombat. कंगारू मदर ने देखा कि एक aboriginal hunter जो बहुत टाइम से वहाँ छुपा हुआ था वो वॉम्बेट का चुपचाप पीछा कर रहा था. The kangaroo began to stomp on the branches and twigs under her feet and distract hunter. तो कंगारू मदर ने अपने पैरों से ब्रांचेस के पास कुछ हलचल करी जिससे हंटर का सारा ध्यान
कंगारू की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया और वॉम्बेट की जान बच गई। What gift did God send for the kangaroo for her kindness? तो गॉड ने कंगारू को अपने अच्छे बिहेवियर के लिए क्या गिफ्ट दिया? सो गॉड हैज़ गिफ्टेड अ पाउच इन विच शी कुड कैरी हर बेबी जॉय। He could even sleep in there as she went about her daily tasks. तो बाय मी गॉड ने कंगारू मदर को अच्छे बिहेवियर के लिए एक पाउच गिफ्ट किया जिसमें वो अपने बेबी को रख सकती थी और बेबी उसके पाउच में इवन सो भी सकता था और मदर आराम से अपना डेली टास्क कर सकती थी। What happened when she wore that apron? जब कंगारू मदर ने वो एप्रन पहना तो क्या हुआ? As kangaroo mother tied apron around her waist, by me transfer it into soft kangaroo fur pouch. जैसे ही कंगारू मदर ने उस एप्रन को अपने वेस्ट मतलब कमर के बाजू से बांधा तो वो एप्रन एक सॉफ्ट फर में ट्रांसफ़र हो गया। She asked for the pouch for other marsupials also. What does it tells about her? कंगारू मदर ने बाकी के एनिमल्स जैसे कि मैसूपियल के लिए भी एक पाउच मांगा जिससे वो भी अपने बेबी को सेफ रख सकते। तो इससे कंगारू मदर के कौन से बिहेवियर के बारे में पता चलता है? So, kangaroo was of kindest and tender heart. She was having generous heart. तो कंगारू साफ दिल की और बहुत ही अच्छी थी और इसका दिल भी बहुत ही प्यारा था। So here our question answers are completed. Now we will do the pronunciation. This word spacing you do by yourself. Okay? ये स्पेलिंग्स आपको चैप्टर में ढूंढनी है और फिर आपको फिल करनी है। ओके? नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर आपको सिलेबल्स फाइंड आउट करने हैं। डू यू नो व्हाट इज सिलेबल्स? सिलेबल्स का मतलब होता है जब आप इंग्लिश में कुछ वर्ड्स रीड करते हैं तो उसमें से कितने साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में पहले तो ई साउंड आया, देन एल साउंड आया एंड एन आया, तो ये साउंड थे 3 साउंड्स। वैसे ही मैंने बोला क्लास, तो क्लास में सिर्फ एक ही साउंड आया विच इज़ अ, तो ये थे हमारे सिलेबल्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए है वांटेड, तो आप देखेंगे इसमें 2 साउंड है, फर्स्ट वर्ड इज एन एंड सेकेंड इज एड, तो एन एंड एड ये 2 साउंड के कारण यहाँ पे कितने सिलेबल्स हैं? 2 सिलेबल्स। देन वी आर हैविंग नीडेड, नीडेड में भी 2 सिलेबल है, फर्स्ट वन इज नी एंड सेकेंड वन इज डेड। देन वी आर हैविंग वर्कड, वर्कड में एक ही सिलेबस है, जैसे कि हमने बोला वर्कड, तो एक ही मात्रा हमें सुनाई दे रही है, एक ही साउंड आ रहा है। देन वी आर हैविंग वॉश्ड, वॉश्ड में भी 1 सिलेबल है। क्लीन्ड, क्लीन में भी 1 सिलेबल। मोप्ड 1 सिलेबल। स्टडीड हैविंग 2 सिलेबल्स। प्लेड 1 सिलेबल। सेल्ड 1 सिलेबल। फैक्स्ड 1 syllable, watched 1 syllable, waited 2 syllable, answered 2 syllables, remembered 3 syllables. Okay? Now next we are having our grammar section. Okay? So here we are having types of adverb. तो पहले हम देखते हैं कि adverb क्या होते हैं। An adverb is a word used to add something to the meaning of verb. verb को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में और बताने के लिए हम adverb का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर adverb के कुछ टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप इज adverb ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम
कैसे हो रहा है, लाइक इट टेल्स हाउ समथिंग हैपन, मतलब कि जैसे आप देखेंगे द चिल्ड्रन प्लेड नॉइजीली, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, प्लेइंग, मतलब बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कैसे खेल रहे हैं, तो शोर करते हुए, नॉइजीली। तो यहाँ पर एडवर्ब है हमारा नॉइजली, क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कि जो प्लेइंग है वो कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। देन वी आर हैविंग एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं कि अगर कोई काम हो रहा है तो वो कब हो रहा है और कितने टाइम तक हो रहा है। ओके, जैसे इट टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपन, मतलब कि अगर कोई भी काम हुआ है तो वो कब हुआ है, एंड ऑल्सो हाउ लॉन्ग इट विल हैपन, और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि वो काम कितना लंबा चलेगा। वी विल वॉच द मूवी टुमारो, हम कल मूवी देखेंगे। तो काम क्या हो रहा है, मूवी देखने का, लेकिन इसमें टाइम बताया है कल, तो वो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। देन वी आर हैविंग दे मे स्टे इन कनाडा फॉर अ ईयर, तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कनाडा में रहने का हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको टाइम भी डिस्क्राइब किया है, जैसे फॉर अ ईयर, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। Adverb of frequency. Adverb of frequency tells about how frequently or how often it happen. मतलब कि ये हमें बताते हैं कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, लाइक ऑलवेज मतलब हमेशा हो रहा है, यूजुअली मतलब कि कभी कभी, रेगुलरली मतलब रोज़, नॉर्मली मतलब साधारण तरीके से, ऑफन हर कभी, ओकेजनली मतलब बहुत कम टाइम, नेवर मतलब कभी भी नहीं। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। सो वी ड्रिंक कॉफ़ी ओकेजनली, हम कभी कभी कॉफ़ी पीते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइम आपको फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कभी कभी। वी नेवर ड्रिंक टी, हम कभी भी चाय नहीं पीते, तो नेवर भी क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताते हैं कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, मीन्स वेयर, कहाँ हो रहा है। दे हैव गॉन नियर बाय, वो पास में ही गए हैं, कहाँ गए हैं, पास में गए। वी सर्च्ड एवरीवेयर, हमने हर जगह देखा, तो इसमें भी आपको जगह क्या बता रहे हैं, हर जगह। देन वी आर हैविंग एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें इंटेंसिटी बताते हैं, मतलब कि कोई चीज़ कितनी हो रही है ना, जैसे कि लेस, मोर, इनफ, हार्डली, वेरी मच, तो ये सब क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए, तो अब हम इसको यूज़ करके यहाँ पर ब्लैंक्स भरेंगे। वी शुड क्रॉस द रोड वेरी केयरफुली, हमें रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए, केयरफुली, ध्यान से। देन आई विल सेंड यू द मनी इमीडिएटली, मैं तुम्हें पैसे बहुत जल्द भेज दूंगी, अभी भेज दूंगी। वी ऑलवेज ग्रीट आवर पेरेंट्स इन द मॉर्निंग, तो ऑलवेज मतलब हमेशा, तो ये क्या है हमारे लिए, फ्रीक्वेंसी। ओके, देन आई टोल्ड हिम टू क्लिम द स्टेयर्स स्लोली, मैंने उसे बोला कि सीढ़ियों पर धीरे चढ़ो। देन इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट वी हैव फुल मून, फुल मून रोज़ नहीं होता है। The dentist says we must brush our teeth politely and fast. I always finish my homework after coming from school. The Rajdhani Express train is quite fast. तो यह थे हमारे एडवर्ब जिससे हमने अपने ब्लैंक्स को कंप्लीट किया है। Now we are having adjectives of adverb. आपको adjectives को adverb में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वी आर हैविंग ईजी, तो ईजी हो जाएगा ईजीली। देन वी आर हैविंग एब्सेंट माइंडेड, तो एब्सेंट माइंडेड बन जाएगा एब्सेंट माइंडेडली। काइंड बन जाएगा काइंडली। नीट नीटली। वार्म वार्मली। अब्रप्ट अब्रप्टली। जॉय जॉयफुली। हेल्प
helpful, helpfully. Then we are having fill in the blanks. Here two options are given. You have to select the correct adjectives. The tall boy was dressed smart या फिर smartly. So the correct answer will be smartly. The harassed milkman disturbed the milk quickly. The red fire engine passed by noise या noisily? Noisily. The black cow started running sudden? Yes, suddenly. So answer is suddenly. The sleepy girl made the beds clumsily. My little sister came into the room singing a song. Thankfully, I saw my friend coming with an umbrella. The young man at the desk spoke very politely. So here are these fill in the blanks are also completed. Here you are having listening skills. तो ये listening skills हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए एक पूरा पैराग्राफ होता है जो मैं आपको क्लास में ही समझा सकती हूँ. So this you leave and turn the page. नेक्स्ट वी आर हैविंग आर राइटिंग स्किल. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें आपको हुड, नेस और डम इन्हें यूज़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. जैसे सैड, सैडनेस, नेबर, नेबरहुड, फ्री, फ्रीडम, ब्रदर, ब्रदरहुड, चाइल्ड, चाइल्डहुड, ड्राई, ड्राइनेस, बोर, बोर्डम, किंग, kingdom, lazy, laziness, kind, kindness. So here this chapter is completed. So next chapter we will do in our next video. Till that, bye bye, take care.